Good morning, students. I hope you're all fit and fine. Due to COVID 19, the government has decided to stop physical education for your safety so that ICRA school started online teaching so that your education should not interrupt it. So, here in chapter 11, the United Nations, part 2, here, organs of the United Nations. There are 6 organs of the United Nations. First one is here Secretariat, General Assembly, Security Council, International Court of Justice, Trusteeship Council, Economic and Social Council. Dear students, they have their different job to execute. The first one, Secretariat. The decisions taken by various organs like General Assembly, Security Council, International Court of Justice, Trusteeship Council, Economic and Social Council. So, what they have decided? So, this Secretariat implements the decision taken by various organs of the UN. Again, here, General Assembly, the organization of countries to discuss and solve the international issues. The work of General Assembly is this organization, the organization of countries to discuss and solve the international issues. Okay, you see, these are different international issues may arise in among the nations. Okay, relating to business, relating to political situations, chaos, whatever may be. So, that discuss in the General Assembly Hall, what they discuss and solve their disputes. So, this is the organ we do this. Again here, Security Council safeguard the international security. सो यहाँ हम देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी. ये सिक्योरिटी काउंसिल का काम है. सपोज के जो मेंबर नेशंस है, सपोज वन मेंबर नेशन अटैक द अनदर nation without any cause, without any reason. So they discuss, they see all the things. Then the Security Council advises and they take decision which implemented by the Secretariat. Again here, International Court of Justice solves the disputes among the member nations. Okay, in the member nations, so lot of issues may arise, whether it's business, whether it's social, cultural, political, whatever may be. So, they came to international court, they knocked a door of international court. So, they deeply ponder, they deeply check what is going on between the different nations. So, they solve the dispute among the member nations. This job of done by International Court of Justice. Again here, Trusteeship Council helps to acquire freedom from foreign rule. Next, last one, Economic and Social Council. This council improves the economic and social conditions for the welfare of people. So they have their own schemes, okay, among the member nations. They improve the economic and social conditions of the welfare of people. So, these are the 6 organs of the United Nations. Next, see page number 87. Dear students, you can see in your screen General Assembly Hall. The General Assembly is the biggest organ of the UN, which can also be called the World Parliament. भी इसको कह सकते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट. बिकॉज देखो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स होते हैं. हमारा पार्लियामेंट में भी दिल्ली है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे इश्यूज़ को. लाइक दैट दिस इज़ ए वर्ल्ड पार्लियामेंट वी कैन से. डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स हियर एंड डिस्कस okay the world issues. The representatives of the member nation attended. Every member nation can send at least 5 representatives, delegates to it.
तो हर जो मेंबर नेशन होता है वहाँ पे पार्लियामेंट में भेजते हैं अपने देश के नुमाइंदा बना के, ओके। बट लेकिन एट द टाइम ऑफ वोटिंग वन नेशन कैन कास्ट ओनली वन वोट। जब वोटिंग की जो बारी होती है जो भी इश्यूज़ को लेके, तब एक नेशन सिर्फ एक ही वोट दे सकता है, लेकिन वहाँ पे 5 नुमाइंदे अपने देश से भेज सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट में, ठीक है, जनरल असेंबली में। द जनरल मीटिंग इज हेल्ड वंस इन ईयर, इट्स मेंबर इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब जनरल मीटिंग इज हेल्ड वंस इन ईयर, तो जनरल मीटिंग होती है साल में एक बार होती है, यहाँ पे इट्स मेंबर इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग एवरी ईयर। हर साल में वो जो मीटिंग होती है उसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। मिसिस विजयलक्ष्मी पंडित was elected as the president of the general meeting in the year 1953-54. It is a pride for our nation because उस टाइम के हमारे मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित वहाँ पे प्रेसिडेंट चुना गया जनरल मीटिंग के, कब 1953-54 ईयर में। The assembly presented the Universal Declaration of Human Rights on 10th December 1948 को ये डिक्लेयर किया गया। The assembly presented the वहाँ पे ये रखा गया, एक प्रस्ताव रखा गया, कौन सा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसान के हुकूक, ये पहली बार रखा गया 10 दिसंबर 1948 को। The General Assembly can discuss and suggest solution or give advice to any issue in the world within the limits prescribed in the चार्टर ऑफ यूएन का जो चार्टर है, जो लॉ है, उसके हिसाब से जो भी दुनिया के अंदर जो मेंबर नेशंस के सारे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे डिस्कस होते हैं वहाँ पे, और उसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, और एडवाइस देते हैं उस इश्यूज़ का। द जनरल असेंबली इमीडिएटली ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टुवर्ड्स एनी सिचुएशन विच कैन पुट द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड इन डेंजर। कभी भी दुनिया में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, सम नेशंस विल create some problems so that कुछ भी प्रॉब्लम होता है तब सिक्योरिटी काउंसिल उसको सिचुएशन को ध्यान देती है, उसके जो मेंबर्स, उनके जो एक्सपर्ट्स इसको स्टडी करते हैं, फिर उसको प्रस्ताव पास करते हैं, विच कैन पुट द पीस एंड सिक्योरिटी, जो दुनिया के अंदर जो कुछ खतरा हो सकता है तब। द अथॉरिटी टू ग्रांट मेंबरशिप टू ए नेशन लाइज विद द जनरल असेंबली, ओके। अब वहाँ पे जो उनके पास हुक्म देना, अथॉरिटी देना, पावर देना, मेंबरशिप, ग्रैंड मेंबरशिप देना तो कोई भी नेशन को, ये जनरल असेंबली के पास पावर होता है। तो ये हो गया जनरल असेंबली। सो नेक्स्ट देखो पेज नंबर 88 स्टूडेंट, द सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन, इट हैज 15 मेंबर्स। ये यूएन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके कितने मेंबर्स है, 15 मेंबर्स है। आउट ऑफ दीज 15 मेंबर्स, 15 मेंबर में से 5 कंट्रीज दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना आर द परमानेंट मेंबर्स। ये सब परमानेंट मेंबर्स हैं। द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ए टर्म ऑफ 2 years बाय द जनरल असेंबली। जितने भी बाकी के दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको 2 years के लिए अपॉइंट किया जाता है। द अदर 10 members are elected for a term of 2 years by the General Assembly. The Security Council enjoys tremendous powers to manage peace and security in the world. ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इनके पास ट्रेमेंडस पावर होता है, इनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, ओके, टू मैनेज पीस एंड दुनिया की जो अमन शांति को मेंटेन करना है तो बहुत सारे पावर्स होते हैं, तो वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, उससे दुनिया में उनके डिसीजन, उनके वजह से दुनिया में सारी अमन चैन बेहतर हो सकती है। इट्स एम्स टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस। इनका जो मेन मकसद होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, दुनिया में आपस के जो मेंबर नेशंस है उनमें कोई भी प्रॉब्लम एराइज हुआ है, ठीक है, आपस में, तो इसको ये लोग डिप्लोमेटिकली सॉल्व करते हैं जहाँ तक हो सके। बाद में द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज नोन एज सेक्रेटरी जनरल। दो यूनाइटेड नेशंस के जो हेड होते हैं उनको सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। उनको एट द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल का रिकमेंडेशन लेते हुए इनको जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। ही वर्क्स एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूएन। वो इस तरह से काम करते हैं, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूएन के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पे, व्हाट इज वीटो क्या है। द वीटो पावर ऑफ राइट टू डिनाई इज अ नेगेटिव वोट कास्टेड अगेंस्ट ए प्रपोजल इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी एक प्रपोजल, प्रस्ताव रखते हैं कोई भी देश को लेके, तो उसमें किसी को आपत्ति होती है, किसी को प्रॉब्लम होता है, तो उसको वीटो के जरिए, उनके पास वीटो पावर होता है,
एक नेगेटिव वोट दे सकते हैं, भाई ये नहीं, ये गलत है। तो राइट टू डिनाई मतलब इनको पावर होता है डिनाई करने की, ना कहने की। इज ए नेगेटिव वोट कास्टेड अगेंस्ट ए प्रपोजल इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू एग्री ओवर एनी डिसीजन। कोई भी जो सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेते हैं तो 5 मेंबर्स को भी सबको हाँ कहना होता है। तो कोई भी वीटो पावर नहीं यूज़ करते तो उसको इम्प्लीमेंट हो सकता है। किसी को आपत्ति है 5 मेंबर जो वीटो पावर, जैसा मैंने बताया 5 देशों के पास वीटो पावर है, अगर वो वोट कास्ट करते तो वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। द रिसोल्यूशन डज नॉट पास इफ एनी ऑफ द 5 मेंबर्स यूजेस वीटो। अगर वीटो पावर का लोग 5 मेंबर यूज करते तो वो रिसोल्यूशन पास नहीं होगा। Next, special organizations of the United Nations. The main objective of the United Nations is to foster social, economic, cultural and educational development of the people and help them in improving their standard of living by generating more employment opportunities. जो मेन मकसद है यूनाइटेड नेशंस का क्या है, एक टू फोस्टर, एक समाज में पालना है, अच्छे से एक माहौल क्रिएट करना है, सामाजिक, इकोनॉमिक होता है बिजनेस रिलेटेड, कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। किसका? एक अच्छा माहौल पैदा होना चाहिए दुनिया में, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड हेल्प देम इन इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये सारी चीज़ें कब होगी कि इस तरह का दुनिया में लोग माहौल पैदा करेंगे, ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ओके, ताकि दुनिया में मोर एम्प्लॉयमेंट, अच्छे रोजगार पैदा होवे, ताकि लोग सब खुशहाल रहे। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स various organizations have been established to work in specific areas under the leadership of the United Nations. तो ये हासिल करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो अलग अलग संस्थाएं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, उनको निर्माण किया गया, उनको बनाया गया टू वर्क इन स्पेसिफिक एरियाज, कोई ख़ास खुसूसी एरियाज पे अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस के लीडरशिप में। वो लोग के जो भी उनके एक्सपर्ट होते हैं उनको दुनिया के अंदर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी हैं, ठीक है। कहीं पे एक सामाजिक कार्य बहुत सारे क्रिएट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, संस्थाएं आगे आती है, ठीक है। तो वो कई जगह पे हम देखते हैं ना कि यूएन के कई ऑर्गेन्स, उनके जो ऑर्गेन्स है वो अपने अपनी वर्ल्ड्स में काम करते हैं। जैसा हमारा इंडिया में भी है, बहुत सारे इंडिया के अंदर में भी बहुत सारी यूएन के लीडरशिप के अंदर में सारी संस्थाएं काम करती है, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई जैसा कि नेचुरल कैलामिटीज आती है, वहाँ पे उनको किस तरह से काम करना है, इनके लीडरशिप में वो लोग, उनको फंडिंग्स होती है, वहाँ पे सारे काम करते हैं। नेक्स्ट, तो नेम ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन के हम देखते हैं पेज नंबर 689। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन, देखो ये शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ दिया गया है। WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इनका है जेनीवा। तो मेजर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के क्या फंक्शंस है? मेक्स एफर्ट टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी लोगों की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको ये लोग डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको हम कहते हैं UNESCO, यूनेस्को। इनका हेडक्वार्टर है पेरिस। To contribute peace and security by promoting international collaboration through education, science and culture, to order to further in universal respect for justice, the rule of law and human rights. इनका जो काम होता है, ये लोग सहयोग करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है, सारी दुनिया को ये लोग जोड़ते हैं, एक देश दूसरे देश का हेल्प देता है थ्रू किसके जरिए? पढ़ाई में, एजुकेशन, साइंस में, कल्चर, ये सारा आपस में लोग शेयर करते हैं नॉलेज को। क्यों? इन ऑर्डर टू फर्दर यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस। सबको ओके, कहीं पे एक साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ है, उसका सबको फ़ायदा हो सके, कहीं पे कुछ डेवलपमेंट्स हो सके, उसका सब शेयर करते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गन, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया कौन सा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इसको कहते हैं ILO, ये भी इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में। टू प्रमोट राइट्स इट वर्क्स
encourage decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue on work related issues. इनका काम होता है, इनको एक आगे बढ़ाना होता है, बढ़ावा देना होता है किसको? राइट एट वर्क, राइट्स एट वर्क। हम जहाँ भी काम करते हैं हमारे क्या राइट्स है, क्या हमारे हुकूक है। एंकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, अच्छी जॉब, अच्छा हो सके, सारी फैसिलिटी मिल सके, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके जॉब्स की। एनहांस सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक हमें एक इंसाफ प्रोटेक्शन होना चाहिए। एंड स्ट्रेंथन डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज, जो भी काम के इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, उसको डायलॉग के जरिए हल कर सके। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये सारा काम करता है इसके लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नाउ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, इसको यूनिसेफ भी कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क में। टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म humanitarian and developmental assistance to children and mothers in the developing countries to get good standard of living and nutritious food and organize children welfare programs. ये लोग प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंटल असिस्टेंस बच्चों के लिए लंबे समय तक, ठीक है, उनको डेवलपमेंट उनकी। नेक्स्ट, एंड मदर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे अभी डेवलप हुई है, जैसा वी कैन सी इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, अफगानिस्तान, ओके, नेक्स्ट पाकिस्तान, ये सारे श्रीलंका, ये जो देश है ये डेवलपिंग है, अभी डेवलप हो रहे, पूरे डेवलप नहीं है। जैसे डेवलप देश है अमेरिका, फ्रांस, जापान, ये सारे वेल डेवलप देश है, लेकिन हमारा डेवलपिंग नेशन से अभी हमें इनका सहयोग, हमें बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ये लोग इन्हें अच्छा खाना देवे, न्यूट्रिशियस फूड देवे, और चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोग्राम, जो बच्चों की भलाई होती है, डेवलपमेंट होती है, जैसा उनको बुक्स फ्री देना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें ये यूनिसेफ करती है। इंडिया में भी बहुत सारे इनके है ऑर्गेनाइजेशन के, वो उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनका बहुत अच्छा काम होते रहता है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये FAO शॉर्ट फॉर्म इसका रोम में है। इनका क्या काम है? टू एंश्योर दैट पीपल गेट ए रेगुलर सप्लाई ऑफ इनफ एंड हाई क्वालिटी ऑफ फूड टू प्रमोट एग्रीकल्चर। इनका काम होता है FAO का, टू एंश्योर, विश्वास देना चाहिए पब्लिक को, दुनिया के, दैट गेट ए रेगुलर सप्लाई ऑफ इनफ। एक खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहीं पे कोई देश में खाने का प्रॉब्लम होता है, अनाज का प्रॉब्लम होता है, एग्रीकल्चर की, वो लोग ने उनको साइंटिफिकली नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग को दुनिया के अचानक कोई डेवलपिंग नेशंस में खाने की कमी ना पड़ जावे, अकाल ना आ जावे। रेगुलर सप्लाई ऑफ इनफ एंड हाई क्वालिटी ऑफ फूड, रेगुलर रोज़ अच्छा खाना ये लोग को पहुंच सके, तो उनको उस तरह से क्या करना है, ये लोग ने टू प्रमोट एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, सारे आइडियाज़ ये लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ये इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। तो इनका क्या काम है? टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स एंड ग्रांट्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज। दिस सपोर्ट ए वाइड एरे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच एरियाज एज एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये लोग का काम है स्टूडेंट टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स, जो डेवलपिंग मेंबर्स हैं इनके नेशन से, जो भी देश डेवलपिंग, उनको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स देना है एंड ग्रांट्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज को इनका काम होता है। दीज सपोर्ट ए वाइड एरे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच एज एरियाज, एजुकेशन में लोग इन्वेस्ट करते हैं, नेक्स्ट हेल्थ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके अंदर में, फिनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट, खेती में, एंड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में ये लोग ने अपना योगदान देते हैं उनके एक्सपोर्ट के साथ। तो ये हो गया नेम ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN। तो स्टूडेंट यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं ये सारे इनके लोगोस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर cooperation of the India to the UN, because India is one of the member nation of the UN. India has adopted the strategy of solving the disputes with other nations through UN.
तो इंडिया ने, बिकॉज यू सी, एक इंडिया अमन पसंद देश है, अमन पसंद देश है, शांति पसंद देश है। तो जो भी इंडिया के प्रॉब्लम्स आते हैं वो यूएन के जरिए डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। इंडिया हैज अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू यूएन। इंडिया हैज ऑलवेज contributed on a large scale to the peacekeeping forces of the United Nations। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पीस कीपिंग फोर्सेस है उनको हमेशा ये लोग ने, इंडिया ने बहुत अच्छे अंदाज में सहयोग किया है, बाय सेंडिंग सोल्जर्स वेर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ भी सैनिक की ज़रूरत होती है तो हमारे इंडिया के बहादुर जवान वहाँ पे जाते हैं। जो दूसरे मेंबर नेशंस होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा हमारा इंडिया फौज को भेजता है। बहुत बार श्रीलंका में भेजे हैं, ओके, अफ्रीका में भेजे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में भी भेजे हैं। तो इंडिया हमेशा यूएन को कीप सपोर्ट करता है। इंडिया हैड सेंट ए टीम ऑफ डॉक्टर्स टू ट्रीट द वुंडेड सोल्जर्स इन द कोरियन वार। जब कोरियन वार हुआ था तब इंडिया के जो डॉक्टर्स है, होनहार डॉक्टर्स को भी इंडिया ने टीम को भेजे थे, ओके। इंडियन डेलीगेट्स ऑन वेरियस posts in the UN have contributed to the welfare of her their knowledge and experience। बहुत सारे डेलीगेट्स इंडिया के जो अलग अलग यूएन में जॉब करते हैं, पोस्टिंग से उनके, वो लोग अपना नॉलेज को शेयर करते हैं भलाई के लिए, एंड एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे को। इंडिया कंट्रीब्यूशन एज ए मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स है ऑलवेज बीन नोटवर्दी। जो भी हमारा योगदान है यूएन मेंबर्स के, उनकी जो संस्थाएं के साथ एक तारीफ है, काबिल है। द ग्रेट आइडियाज ऑफ पंचशील और गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। द ग्रेट जो आइडियाज है हमारे पंचशील के, दुनिया को हमने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रे ऑफ होप फॉर द ह्यूमन रेस। एक ह्यूमन रेस जो है, इंसानियत, इंसान की जाति है, इसको एक उम्मीद की किरण दी है। इफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेट विद द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड पीस कैन बी ऑब्टेन्ड इन द रियल सेंस। अगर दुनिया के जितने भी सारे देश है, अगर उसके यूनाइटेड नेशंस को कोऑपरेट करते हैं तो एक दुनिया का एक शांति, एक माहौल बिल्कुल बहुत ही अलग रहेगा। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट एवरी कंट्री रिसॉल्व टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डेडली वेपन्स। तो देखिए अभी अब बहुत से लोग, अलग अलग देश डेडली वेपन्स बनाते हैं, हथियार बनाते हैं। वही एक बहाने कि भाई हमारे देश पे कोई हमला करा तो हमें कुछ हो गया तो हमारी सिक्योरिटी कैसी। तो ये डेडली वेपन्स बनाने से दुनिया में माहौल ख़राब हो रहा है। करोड्स ऑफ रुपीज़ कैन बी सेव्ड इफ दिस रेस ऑफ इंक्रीजिंग वेपन्स इन दिस कंट्रीज एंड्स। करोड़ों अरबों रुपए का पैसा हम बचा सकते हैं। अपने सिक्योरिटी के नाम पे कितने हम इकट्ठा करते हैं धन को, हथियार को इकट्ठा करके रखते हैं, कितने करोड़ों रुपए की तबाह कर देते हैं। अगर इस तरह से हम ये नहीं करते तो हम दुनिया कुछ बिल्कुल अलग हो सकती है। दिस मनी कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। वही पैसा हम इंसानियत की भलाई पे लगा सकते हैं। अर्थ इज ओनली प्लैनेट फॉर अस टू लिव। एक ही सिर्फ हमें एक धरती है, एक जो प्लैनेट है जहाँ हम रह सकते और कहीं नहीं रह सकते। ह्यूमन बींग्स हैव टू एम एट अचीविंग वर्ल्ड पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पूरी दुनिया का भाईचारा, बिकॉज ऑल आर, पूरी दुनिया में भाईचारा कायम करना, दुनिया में अमन चैन शांति कायम करना, ये एक उम्मीद है। तो ये था आपका 11th चैप्टर द यूनाइटेड नेशंस। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू।